Yeah, hello students and welcome back again in our video tutorial. And today in this lecture we are going to discuss about tools of recombinant DNA technology. In the previous lecture I have told you about, we have discussed about the construction of first recombinant DNA molecule, and we have finished our lecture upon the point that we are going to discuss about the tools of recombinant DNA technology. So today we will be starting the tools, and I will be discussing the first tool, that would be enzymes. So what are the major enzymes which has been used in recombinant DNA technology, and let us learn enzymes which are used to open up the cell, enzymes which are used to cut DNA, enzymes which are used to join DNA, enzymes which are used to undergo polymerization of DNA, enzymes which are used to alter the cut ends of DNA, and so on. I will be telling you the list of enzymes. So let us start our lecture, and title of today's lecture would be tools of recombinant DNA technology. We also call that as RDT technology. The tools of RDT I am going to start. Before starting tools of RDT, let me tell you that RDT, which is also known as genetic engineering. When we talk about genetic engineering, it simply means I am talking about recombinant DNA technology. I told you there are two major principles. One was genetic engineering and second was those bioprocess or chemical engineering. So if I say कि जो genetic engineering होता है या जो recombinant DNA technology होता है, that is a field of biotechnology which mainly specialize in developing new combinations of genetic material. What you are doing in genetic engineering or recombinant DNA technology, you have been specialized to create new combination of genetic material which we call recombinant DNAs, or I will say that these combinations are artificially produced in laboratory. These new combinations of recombinant DNA are artificially produced in laboratory, and they are meant for introduction into host cell, and then they can propagate and they can multiply there. तो I just told you कि जेनेटिक इंजीनियरिंग से आप नए नए कॉम्बिनेशन बनाते हैं जेनेटिक मटेरियल के, जिनको रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं, और उन रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बनाकर आर्टिफिशियली सिंथेसाइज करके इनसाइड द लैब आप उनको होस्ट के अंदर भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, और होस्ट में जाके वो प्रोपोगेट कर सकते हैं और मल्टीप्लाई कर सकते हैं. Alright, so let us start with tools of RDT, and first tool which we are going to discuss here are enzymes. We will be talking about different enzymes, we will be talking about vectors, we will be talking about competent host. So for the time being, I am going to teach you about the different enzymes which has been used in recombinant DNA technology. There is no fun in telling that what is an enzyme. I am not going to teach you, that is a very basic class 5-6 biology only. Okay? Which enzymes are used in recombinant DNA technology? First category of enzyme which I am going to mention here is cell openers. Those enzymes which are meant to open up a cell, we simply call that cell opener. What I am telling you, for example, there is a bacterial cell here, and all the genetic material is present inside the bacterial cell, no fun in telling this, and I want to isolate this DNA and then cut this DNA by my enzymes. In order to isolate DNA from any cell, I need to open up the cell boundaries, and to open up the cell boundaries we are having cell opener. For example, in cell opener, if this is a fungal cell, I am extracting something from a fungus. We better know fungus has been specialized to produce certain antibodies, and I want to make those antibodies in laboratory, so I can extract that gene which was coding for that antibody and can multiple copies of that gene in my laboratory. So if it is a fungal cell, which cell opener should be used? There is no fun in telling that for a fungal cell the cell opener is chitinase. We all know what is chitin and where in fungal cell wall chitin is present. So if it is a fungal cell, if it is fungus, we use chitinase as cell opener.
then it could be a plant cell or animal cell. It could be a plant cell or it could be an animal cell. For the time being, let me tell you about plant cell. For plant cell, for the purpose of plant cell, we are having either cellulose or pectinase as cell opener. Cellulose, cellulase or pectinase. Remember that pectin is present in middle lamella and everything. So cellulase and pectinase are meant for plant cell. Chitinase is used for fungal cell, and if it is a bacteria, for bacterial cell, we are having a special enzyme which is also present in your tears. Which enzyme is that? That is lysozyme. Lysozyme is used to open up the bacterial cell. Cellulase or pectinase is used to open up the plant cell, and chitinase is used to open up the fungal cell. Later on, when I will be telling you about different technologies, I will teach you how to open an animal cell. For the time being, 3 major cell openers you have to remember. One is your chitinase, second is your cellulase or pectinase, and third is your lysozyme. Is that clear, बच्चों? ये होगा first category of enzyme which are cell opener. Second category of enzyme which we have to discuss here, and we have to discuss those in very detail, and name of those enzyme is nuclease. Now what are nuclease? Simply nuclease are those enzymes which cut nucleic acid. Nuclease are those enzymes, they digest, they used to cut nucleic acid. अच्छा, डाइजेस्ट का मतलब यहाँ पर वो नहीं होगा अपने डाइजेशन करके बैठ गए, राइट? व्हेन आई से डाइजेस्ट है, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं. न्यूक्लिक एसिड आर द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, एंड न्यूक्लियोटाइड्स आर कंबाइंड टुगेदर विद फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, एंड एंजाइम विच यूज टू डाइजेस्ट फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड इज ए न्यूक्लियस. तो जो भी डीएनए या आरएनए को कट करते हैं, डीएनए या आरएनए को कट करते हैं, उन एंजाइम्स को आप न्यूक्लियस कहते हैं. अब 2 तरह के न्यूक्लियस पढ़ोगे. देयर आर 2 कैटेगरीज ऑफ न्यूक्लियस. देयर इज वन कैटेगरी विच वी कॉल एक्सोन्यूक्लियस. देयर आर सर्टेन एंजाइम्स विच वी कॉल एक्सोन्यूक्लियस and other which we call endonuclease. First let me tell you the concept of exonuclease and endonuclease, and then only we will be going on a special type of endonuclease which is restriction endonuclease. और restriction endonuclease के बारे में हम कई बार डिस्कशन कर चुके हैं, and today's lecture would be mainly focused on restriction endonuclease to be very specific. So what are exonuclease by definition? Exonuclease को आप बोलेंगे these are the enzymes which removes nucleotide from terminal end, either 5 prime or 3 prime. What are exonuclease? They removes nucleotides from terminal end, and this terminal end could be either 5 prime or 3 prime. In molecular biology, you must have learned about 5 prime and 3 prime. Even in biomolecules, I teach you about this thing. What is 5 prime free phosphate and what is 3 prime free OH? Is that clear? In one strand of DNA duplex, they removes a nucleotide either from 5 prime or 3 prime. So removes nucleotide from terminal end either 5 prime or 3 prime in from one strand of DNA duplex. What I am telling you, for example, let me take this part here. For example, you are having this one strand here and this other strand here. This is 5 prime, this is 3 prime, this is 3 prime and this is 5 prime, and there is no fun in telling that there are some special bonds which are holding these two strands. These are hydrogen bond. Now this enzyme would be either removing nucleotide from this end, it would be either cleaving from here and it would be like this. This is the cleaved part and this is the other part, or it would be either cleaving from here and it would be like this. If it is cleaved from here, the cut part would go like this. So these are the enzymes which remove nucleotide from terminal end. They are referred as to exonuclease. अभी एक टेबल बना दूंगा exonuclease और endonuclease का. And endonuclease, they cut DNA
within the length of sequence, जो भी डीएनए का सीक्वेंस है उसकी लेंथ के अंदर वो कट करेगा। जब आप एंडोन्यूक्लियस को डिफाइन करते हैं तो सिंपलेस्ट डेफिनेशन ऑफ एंडोन्यूक्लियस इज दे मेक कट within the sequence, within the location of a strand of DNA, they make cut and we call that endonuclease. तो अगर endonuclease की बात करें बच्चों, endonuclease would be something like this. For example, again here, अभी जब मैं बताऊंगा ना कंपेरिजन तो ये भी बता दूंगा कौन सा डबल स्ट्रैंडेड कट करता है, कौन सा सिंगल स्ट्रैंडेड एंड सो ऑन। तो अगर मेरे पास यही डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है एंड दीज आर हाइड्रोजन बॉन्ड्स, तो दिस इज 5 प्राइम, डेट्स 3 प्राइम, 3 प्राइम एंड 5 प्राइम। मुझे कुछ याद आ रहा है, मैंने आपको एक्सोपेप्टाइडेज का कंसेप्ट बताया हुआ था, एंडोपेप्टाइडेज का। तो ये जो ये वाले एंड से बेटा ये है आपके टर्मिनल एंड्स। इन टर्मिनल एंड्स के अलावा यहाँ से लेकर यहाँ तक वो कहीं भी कट कर सकता है। तो जो विद इन द सीक्वेंस कट करे वो एंडोन्यूक्लियस, और जो टर्मिनल एंड पर कट करे वो एक्सोन्यूक्लियस। इज दैट क्लियर? पहले दोनों में कंपेरिजन कर लेते हैं। लेट अस मेक ए टेबल बिटवीन, लेट अस कंपेयर बिटवीन एक्सोन्यूक्लियस एंड एंडोन्यूक्लियस, एंड देन लेटर ऑन आई विल बी टेलिंग यू अबाउट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। आई गेस लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया था फ्रॉम द वर्किंग ऑफ एक्सोन्यूक्लियस एंड एंडोन्यूक्लियस। इन अवर नीट एग्जाम देयर वाज अ क्वेश्चन, अ सिंपल कंपेरिजन क्वेश्चन बिटवीन द वर्किंग ऑफ एक्सोन्यूक्लियस एंड एंडोन्यूक्लियस। तो मैं एक छोटा सा टेबल बना देता हूँ जिसमें 2-3 पॉइंट हम पॉइंट आउट कर देंगे कि हाउ एक्सोन्यूक्लियस वर्क और हाउ एक्सोन्यूक्लियस दे डिफर, दे आर डिफरेंट फ्रॉम एंडोन्यूक्लियस, हाउ एक्सोन्यूक्लियस आर डिफरेंट फ्रॉम एंडोन्यूक्लियस। राइट, पहला पॉइंट एक्सोन्यूक्लियस के लिए लिखते हैं। एक्सोन्यूक्लियस ये लिखो क्या, दे क्लीव बेस पेयर ऑफ डीएनए एट देयर टर्मिनल एंड, दे क्लीव base pair, or I must mention nucleotide here, base pair or nucleotide, it should be nucleotide, the exact term, cleave nucleotide from their terminal end. This is what I just told you, and they are the one which cut sequence of DNA, cut within the sequence of DNA, they cut within the sequence of DNA. ठीक है बच्चों, the very first point is very clear कि कैसे एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस की बात करते हैं। एक्सोन्यूक्लियस जनरली एक्ट ऑन सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, और अगर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए तो गैप्स पे एक्ट करेगा। क्या मतलब है मैं बता देता हूँ, पहले लिख देता हूँ। दे जनरली एक्ट्स ऑन सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए और गैप्स इन डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए का तो कंसेप्ट समझ में आ गया होगा आपको। फॉर एग्जांपल आपके पास ये कोई डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है और इस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में यहाँ पर बेस पेयरिंग नहीं है कॉम्प्लीमेंट्री, यहाँ पर कुछ अनपेयर्ड न्यूक्लियोटाइड्स हैं, तो वो यहाँ पर देखो अनपेयर्ड न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा तो ये टर्मिनल एंड हो जाएंगे। तो वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में जो गैप होता है, दिस इज व्हाट आई कॉल गैप, गैस पे भी ऐड कर सकता है, अदरवाइज वो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को कट करता है। दैट वुड बी योर सिंगल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। सो आइदर दे कट ऑन सिंगल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए or they cut in gaps in a double strand of DNA. Gap is that part where there is unpaired nitrogen bases present there, they are not having complementary base pairing there. Is that clear? तो नॉर्मली याद रखना एक्सोन्यूक्लियस सिंगल स्ट्रैंडेड ऑफ डीएनए को कट करते हैं, और अगर डबल स्ट्रैंडेड को कट करेंगे तो कहाँ पर करेंगे, गैप में। एंड एक्सोन्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियस कैन क्लीव वन स्ट्रैंड और बोथ स्ट्रैंड। Endonuclease can cleave one strand or both strand। इसका मतलब क्या हुआ ये भी बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपके पास अगेन डबल स्ट्रैंडेड डीएनए
ये आपका रिस्ट्रिक्शन, ये आपका हाइड्रोजन बॉन्ड्स, इट कैन कट हेयर, इट कैन क्लीव वन स्ट्रैंड और एज वेल एज इट कैन कट हेयर एज वेल एज इट कैन कट हेयर। तो दोनों स्ट्रैंड को भी कट कर सकता है और सिर्फ एक ही स्ट्रैंड को कट करता है। तो जब आपसे पूछा जाता है दोनों स्ट्रैंड को कौन सा न्यूक्लियस कट करता है, दिस वाज द कंसेप्ट एक्चुअली। याद रखना, एंडोन्यूक्लियस आर स्पेशलाइज्ड टू कट आइदर वन स्ट्रैंड और बोथ स्ट्रैंड, जबकि जो एक्सोन्यूक्लियस वो नॉर्मली सिंगल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए को कट करता है और जहाँ पे डबल स्ट्रैंड में गैप आ जाएगा वहाँ पे कट करेगा। ठीक है बेटा, एक आरएनए का भी कंसेप्ट होता है। एक्सोन्यूक्लियस नॉर्मली आरएनए को कट नहीं करते हैं, जबकि एंडोन्यूक्लियस आरएनए को भी कट कर सकते हैं। They normally do not cut RNA. They normally do not cut RNA, whereas they may cut RNA. This is very, very, very important. May cut RNA. So बच्चे, एक्सोन्यूक्लियस न्यूक्लियोटाइड को टर्मिनल एंड से क्लीव करता है, सिंगल स्ट्रैंडेड ऑफ डीएनए पे एक्ट करता है और नॉर्मली आरएनए वगैरह को कट नहीं करता है, जबकि जो एंडोन्यूक्लियस है वो आरएनए को भी कट करता है, विद इन द सीक्वेंस कट करता है और एक या दोनों स्ट्रैंड को कट कर सकता है। ये तो नॉर्मल टर्मिनोलॉजी, नॉर्मल कंसेप्ट होगा एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस का। अब जब हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की बात कर रहे हैं तो हमको यूज़ करने हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। नाउ लेट अस स्टार्ट द रियल एंजाइम्स used in genetic engineering or used in the concept or used in the different experiments of molecular biology, and let us discuss about restriction endonuclease now, right? So next type of nuclease is restriction endonuclease. आगे चल के मैं restriction word का मतलब भी बताऊंगा आपको, और ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा क्योंकि रेस्ट्रिक्शन का मतलब हम सोचते हैं दे आर रेस्ट्रिक्टेड टू एक्ट एट ए पर्टिकुलर साइट, वही रेस्ट्रिक्शन का मतलब होता है, पर ऐसा नहीं है। रेस्ट्रिक्शन वर्ड कहाँ से आया वो बताऊंगा। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस और व्हाट वी कॉल दैट, बायोलॉजिकल स्कैपल्स, बायोलॉजिकल सीजर्स, बायोलॉजिकल नाइव्स और मॉलिक्यूलर सीजर्स, मॉलिक्यूलर नाइव्स, व्हाट्सएवर जो भी नाम आप याद रखना चाहें। ये बहुत पहले बहुत नाम यूज़ कर चुके हम। अब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की पहले हिस्ट्री से बात शुरू करते हैं। पहले शुरू करते हैं डिस्कवरी से। आप याद रखेंगे ईयर 1963, देयर आर टू मेजर साइंटिस्ट, एक का नाम था आर्बर और दूसरे का नाम था स्टुअर्ट लिन। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये डिस्कवर किया कि ई कोलाई इज़ एबल टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम द अटैक ऑफ बैक्टीरियोफेज, कि जब भी कोई बैक्टीरियोफेज, चलो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। जब ये जो ई कोलाई है, ये समझने वाला है, बाद में लिखना वाला मैं बता दूंगा। जब भी इसके ऊपर कोई भी बैक्टीरियोफेज, कोई भी वायरस अटैक करता है, वी हैव लर्न दोज वायरस विच अटैक ई कोलाई इज बैक्टीरियोफेज। तो जब ये वायरस अटैक करेगा तो इट वुड बी एंटरिंग इट जेनेटिक मटेरियल हेयर। तो जब भी बैक्टीरियोफेज ई कोलाई को अटैक करता है, इस ई कोलाई के अंदर एक नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म होता है अपने आप को बचाने का, और ये अपने आप को बचा लेता है फ्रॉम द अटैक ऑफ बैक्टीरियोफेज। और इस मैकेनिज्म के लिए उन्होंने जो वर्ड यूज़ किया था वो था रेस्ट्रिक्शन एंड मॉडिफिकेशन सिस्टम। मैं लिख दूंगा। तो व्हाट आई एम टेलिंग यू दैट इन द ईयर 1963 डॉक्टर आर्बर एंड डॉक्टर स्टुअर्ट लिन, they actually discovered that E. coli is having a natural defense mechanism, is able to protect itself from the attack of bacteriophage with the help of a defense mechanism जिसको नाम दिया restriction modification system. They actually postulated that there are two enzymes which are responsible to restrict the growth of bacteriophage in E. coli. मैं पूरी कहानी बताता हूँ तुम्हें होता क्या है। जब वो पढ़ रहे थे, इसको नाम शुरू से करते हैं। For example, this is E. coli here, and in blue is the genetic material of E. coli, and this is bacteriophage here, and in red is the genetic material of bacteriophage, and this bacteriophage genetic material has been introduced in E. coli. There is no fun in telling कि जो लेंथ ऑफ जेनेटिक मटेरियल होगा बैक्टीरियोफेज का इट इज़ वेरी वेरी स्मॉल, और जो लेंथ ऑफ जेनेटिक मटेरियल होगा बैक्टीरिया का इट इज़ वेरी वेरी लार्ज। तो जैसे ही ये बैक्टीरियोफेज का जो जेनेटिक मटेरियल है वो इकोलाई के अंदर गया, इसके कुछ जीन्स एक्सप्रेस होने शुरू हो जाएंगे, और वो जो जीन्स हैं
वो कोशिश करेंगे टू डिस्ट्रॉय द जेनेटिक मटेरियल ऑफ इकोलाई। दिस इज नॉर्मल पैरासिटिक मोड ऑफ इन्फेक्शन। भाई क्यों उसने अटैक किया? ताकि वो इसके जेनेटिक मटेरियल को ख़त्म कर सके। लेटर ऑन दे फाइंड व्हाट दे फाइंड कि ये जो इकोलाई है इसके अंदर स्पेशल जीन्स होते हैं इस जेनेटिक मटेरियल के अंदर, और वो दो तरह के मॉलिक्यूल बनाते हैं। इस इकोलाई के अंदर देयर आर सर्टेन जीन्स विच यूज टू मेक टू टाइप ऑफ मॉलिक्यूल एंड दीज मॉलिक्यूल्स आर लाइक दिस। अगर मैं इकोलाई का जेनेटिक मटेरियल यहाँ पर बना दूँ, लेट्स से दिस इज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ इकोलाई and it is making two major molecule. Let's say this is one molecule which is of this color and other molecule which is of this color. There are several in numbers. अभी मैं एक एक लेके चल रहा हूँ। तो जब बैक्टीरियोफेज ने इकोलाई के ऊपर अटैक किया, बैक्टीरियोफेज ने अपने कुछ केमिकल्स बनाए जो इकोलाई को डिस्ट्रैक्ट करने वाले थे। इकोलाई ने दो स्पेशल टाइप के केमिकल्स बनाए, दो स्पेशल टाइप के एंजाइम बनाए जो डिफेंस मैकेनिज्म की तरह काम करते हैं और बैक्टीरियोफेज को अटैक करने से रोकते हैं। इज दैट क्लियर? लेटर ऑन दे फाइंड आउट, फॉर एग्जाम्पल दिस इज केमिकल ए, दिस इज केमिकल बी। ये जो केमिकल बी है ये अटैक करता है एट ए वेरी स्पेसिफिक साइट। लेटर ऑन दे फाइंड आउट दिस केमिकल बी अटैक ऑन ए वेरी स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ डीएनए। फॉर एग्जाम्पल, आपने पढ़ा है कि जो भी जेनेटिक मटेरियल होता है, जो जेनेटिक कोड होता है वो यूनिवर्सल होता है। चार तरह के ही आपके जो है न्यूक्लियोटाइड्स होंगे, आइदर नाइट्रोजन बेसिस की बात के ग्वानिन, एडेनिन, थाइमिन एंड साइटोसिन। अब इन्हीं का कॉम्बिनेशन होता है इन द जेनेटिक मटेरियल। तो व्हाट दे फाइंड आउट कि स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ डीएनए पे कट करता है। फॉर एग्जांपल ये कट करता है एक ऐसी जगह जहाँ पर जी एंड ए आता है, तो जो जी एंड ए के बीच में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है उसको आगे कट कर रहा है। व्हाट आई टोल्ड यू अप टू नाउ, जब भी बैक्टीरियोफेज अटैक करता है उन बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया का जो जेनेटिक मटेरियल है वो दो स्पेशल मॉलिक्यूल बनाता है। पहला मॉलिक्यूल जो है वो स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ डीएनए पे जाके कट करता है। डीएनए को कट कर रहा है तो वो एक तरह का न्यूक्लियस है, और वो कट कर रहा है ऐसे एंड्स पर, ऐसी जगह जहाँ जी एंड ए है। इज दैट क्लियर? अच्छा, आप मुझे बताओगे जी एंड ए वाला जो बॉन्ड है वो जी एंड ए बॉन्ड होने के ज़्यादा चांसेस बैक्टीरियोफेज वाले जेनेटिक मटेरियल में है या जी एंड ए बॉन्ड होने के ज़्यादा चांसेस बैक्टीरिया वाले जेनेटिक मटेरियल में है? दिस इज द लेंथ ऑफ बैक्टीरियोफेज जेनेटिक मटेरियल। लेट्स से दिस इज द लेंथ ऑफ बैक्टीरियोफेज जेनेटिक मटेरियल एंड दिस इज द लेंथ ऑफ बैक्टीरियल जेनेटिक मटेरियल। अब ये तो वेल अंडरस्टूड था कि जी एंड ए वाले जो बॉन्ड्स हैं वो बैक्टीरिया में होने के चांसेस ज़्यादा हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज जी एंड ए हेयर, दिस इज जी एंड ए हेयर, दिस इज जी एंड ए हेयर। इस छोटे से सीक्वेंस में चार अलग अलग जगह प्रोबेबिलिटी है जी एंड ए हो जाए, जबकि फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर सिर्फ एक ही जगह प्रोबेबिलिटी। मैं एक ना कॉमन सा हाइपोथेसिस लेके चल रहा हूँ। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक यू लर्न कि ये जो स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ डीएनए हैं जिन पे बी मॉलिक्यूल कट कर रहे हैं, उन स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ डीएनए के होने के चांसेस ज़्यादा बैक्टीरिया में थे, कि बैक्टीरिया का जो क्रोमोसोमल लेंथ है वो लॉन्ग होता है और उसके चांसेस कम थे बैक्टीरियोफेज में। तो इन मॉलिक्यूल से तो ये हो जाता कि अपने आप को कट करना शुरू कर देता। ये मॉलिक्यूल बनाए थे इसको कट करने के लिए ताकि खुद को बचा सके, पर इन मॉलिक्यूल की वजह से वो सेल्फ डिस्ट्रक्शन भी कर सकता है। ये चीज़ ना हो इसलिए उसने सेकेंड मॉलिक्यूल भी बनाया। अब ये जो सेकेंड मॉलिक्यूल है ये क्या करता है, इनको नाम देंगे अभी। ये सेकेंड मॉलिक्यूल करता है इन स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ डीएनए को मॉडिफाई कर देता है। स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ डीएनए को मॉडिफाई कर देता है। फॉर एग्जांपल जितने भी जी एंड ए होंगे इन द बैक्टीरियल जीनोम, इन द बैक्टीरियल क्रोमोसोम, उनके ऊपर मिथाइल ग्रुप ऐड कर दिया। सिर्फ ये मॉडिफाई करता है अपने क्रोमोसोमल मटेरियल को, ये मॉडिफाई नहीं करता है बैक्टीरियल क्रोमोसोमल मटेरियल को। तो अब हमें पता चल गया फॉर एग्जांपल ये जितने जी एंड ए वाले बॉन्ड हैं बैक्टीरिया के, दे आर हैविंग मिथाइलेशन देयर, और जो जी एंड ए वाला बॉन्ड है बैक्टीरियोफेज का उस पर मिथाइलेशन नहीं है। तो अब ये मॉलिक्यूल जाके पता कर सकता है कि कौन सा मेरा जी एंड ए है, कौन सा बैक्टीरियोफेज का जी एंड ए है। तो ये मॉलिक्यूल जाके बैक्टीरियोफेज वाले जी एंड ए को डाइजेस्ट कर सकता है। आया समझ? एक बार और सुनो, जब भी कोई बैक्टीरिया अटैक करता है, जब भी कोई बैक्टीरियोफेज, दिस इज फेज, फेज मतलब ईटर,
एंड व्हाट ही इज गोइंग टू ईट? बैक्टीरिया, वी कॉल दैट बैक्टीरियोफेज। जब भी कोई बैक्टीरियोफेज अटैक करता है ऑन ए बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया के अंदर एक डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, जिसको भी एक नाम देंगे, क्यों नाम ऐसा दिया है वो बताएंगे। उस डिफेंस सिस्टम में दो तरह के मॉलिक्यूल बनते हैं। एक मॉलिक्यूल होता है जो खुद के जेनेटिक मटेरियल को मॉडिफाई करता है, और दूसरा मॉलिक्यूल होता है जो जाके बैक्टीरियोफेज के जेनेटिक मटेरियल को कट करता है। ये एंजाइम है जो खुद के जेनेटिक मटेरियल को मॉडिफाई कर रहे हैं, उसको उन्होंने नाम दिया, क्योंकि मॉडिफाई करते हैं बाय एडिंग मिथाइल ग्रुप, उनको बोलते हैं डीएनए मिथाइलेज। और ये एंजाइम है जो एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ डीएनए को जाके कट कर रहे हैं, विद इन द सीक्वेंस कट कर रहे थे, तो नाम था एंडोन्यूक्लियेज। और इनकी वजह, नाउ दिस थिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बाद में मैं नोट्स लिखवा दूंगा। इन मॉलिक्यूल की वजह से बैक्टीरिया अनेबल होता है, बैक्टीरिया के अंदर कैपेबिलिटी आती है टू रेस्ट्रिक्ट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफेज, तो नाम दिया रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। तो आगे जब भी कोई पूछेगा रेस्ट्रिक्शन वर्ड का मतलब क्या होता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज में, रेस्ट्रिक्शन वर्ड का मतलब होता है एबिलिटी ऑफ एन बैक्टीरिया टू रेस्ट्रिक्ट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफेज। एबिलिटी आगे मैं लिखवा दूंगा डेफिनेशन, दैट रेस्ट्रिक्शन वर्ड का मतलब क्या होता है। तो बच्चों उस पूरा डिफेंस सिस्टम का नाम था रेस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम। उस सिस्टम का नाम था रेस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम। और मॉडिफिकेशन में क्या होता है, वो अपने बैक्टीरिया अपने जेनेटिक मटेरियल को मॉडिफाई कर लेता है, और रेस्ट्रिक्शन में क्या होता है, वो बैक्टीरियोफेज के जेनेटिक मटेरियल को ख़त्म कर देता है। तो बिफोर स्टार्टिंग अहेड एक और बहुत छोटा सा आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। व्हाट मिस्टर, अच्छा नाम तो लिख दीजिए उनका, जिन्होंने ये सब पढ़ा था। हम तो पढ़ा रहे हैं, वी आर वेरी ब्लेस्ड कि उन लोगों ने पढ़ लिया था। डॉक्टर आर्बर एंड स्टुअर्ट लिन in 1963 discovered which system? Restriction modification system. And what is restriction modification system? यहाँ पे भी लिख दूँ मैं। restriction modification system को बोलते हैं a natural defense mechanism in prokaryote. A natural defense mechanism in prokaryotes. ठीक है बच्चों, तो व्हाट आई वाज टेलिंग यू, स्टुअर्ट एंड लिन ने रेस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम डिस्कवर किया था, उन्होंने पढ़ा था, उन्होंने ये पढ़ा था। व्हाट दे फाइंड आउट कि जब भी कोई बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया को अटैक करता है तो दो तरह के मॉलिक्यूल बनते हैं। एक मॉलिक्यूल होता है जिस एंजाइम का नाम होता है, दो एंजाइम बनते हैं एक्चुअली। एक एंजाइम होता है डीएनए मिथाइलेज जो बैक्टीरिया के अंदर स्पेसिफिक सीक्वेंस को मॉडिफाई कर लेता है, और दूसरा एंजाइम होता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। अब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज को जब ये जी एंड ए मिलेगा तो वो उसको रिकॉग्नाइज कर सकता है, दिस इज मॉडिफाइड, दिस इज माइन। व्हेन दिस मॉलिक्यूल गोज हियर, yes, I am coming, I am going to digest you. So this methyl group can say, hey, this is our own G and A, please do not cut it. And when this molecule goes there, it is not methylated, unmethylated part, it can easily cleave it. तो आया बच्चों इतना समझ। Now let us go on the theory. तो पहले जो भी चीज़ें यहाँ पे आपको समझनी है उसको समझ लीजिए 30 सेकेंड्स में, उसके बाद हम थ्योरी वाला पार्ट शुरू करते हैं। उसको ना एक नाम और देंगे, होस्ट कंट्रोल रेस्ट्रिक्शन ऑफ बैक्टीरियोफेज क्या होता है वो भी बताऊंगा मैं आपको। ठीक है बेटा। सो व्हाट आई एम टेलिंग यू दैट इन 1963 दे डिस्कवर टू एंजाइम एंड दे पोस्टुलेटेड एक्चुअली दैट टू एंजाइम्स आर रेस्पॉन्सिबल टू रेस्ट्रिक्ट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफेज इन यूकोलाई। व्हाट दे फाइंड आउट, टू एंजाइम्स आर रेस्पॉन्सिबल। अब मैं लिखना शुरू कर देता हूँ, आई एम जस्ट क्लीनिंग ऑल दिस पार्ट फ्रॉम हियर। व्हाट मिस्टर आर्बर, स्टुअर्ट लिन का ना फिर नाम थोड़ा सा गुमनाम हो जाता है किताबों से, उनको इतना रिकॉग्निशन नहीं मिला था, बट आर्बर साहब को नोबेल प्राइज़ मिला था, आई विल टेल यू।
तो what actually they discovered? This discovered two enzymes are responsible to restrict the growth of bacteriophage in Escherichia coli. ठीक है बच्चों, यहां तक। नेक्स्ट लाइन सुनो। ये जो एंजाइम्स होते हैं दे बाइंड टू, पहले मैं एक की बात करूँ, नहीं मैं दोनों की बात कर लेता हूँ क्योंकि दोनों स्पेसिफिक ही है। दीज एंजाइम्स बाइंड टू डीएनए एट ए स्पेसिफिक पॉइंट, और वो जो स्पेसिफिक दे एक्चुअली फाइंड आउट कि वो जो स्पेसिफिक पॉइंट है वो ना रिकरिंग साइट है, रिपीटिंग साइट है। इन ए डीएनए जो स्ट्रक्चर एलिमेंट बार बार रिपीट होते रहते हैं वो उसी पे जाके वो बाइंड करते हैं और वो स्पेसिफिक बेस पेयर के बने हैं। तो इस लाइन से जब ये लाइन मैं आपका डिक्टेट करूँगा या ये लाइन को मैं मेनली थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूँगा तो आपको समझ में भी आएगा कि जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है वो एक स्पेसिफिक साइट पे एक्ट करते हैं और रिकग्निशन साइट किसको कहते हैं। So I will say that two enzymes are responsible to restrict the growth of bacteriophage in E. coli. Note, I will say this is said by Dr. Arbour. Later on, they also said that these enzymes bind to DNA at a specific site. These enzymes binds to DNA at a specific site. और अब ये जो स्पेसिफिक साइट इसके बारे में कुछ सुनो। ये जो स्पेसिफिक साइट होती है ये स्ट्रक्चरल रीअकरिंग सीक्वेंसेस होते हैं। दिस स्पेसिफिक साइट कंटेन्स रीअकरिंग स्ट्रक्चरल एलिमेंट containing recurring का मतलब हुआ बेटा रिपीटेड स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स ऑफ स्पेसिफिक बेस पेयर्स। तो ये जो साइट है ये ना उस पूरे सीक्वेंस में बार बार रिपीट भी हो रही है। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया था जी एंड ए का, और उस जी एंड ए पे ही जाके ये दोनों एंजाइम जो है वो एक्ट कर रहे हैं, एक मॉडिफाई कर रहा है, एक डाइजेशन कर रहा है, वो बात की बात थी। एज आई वाज टेलिंग यू, एक्चुअली दे वर स्टडीइंग ए फिनोमिना, एक अर्लियर नॉन फिनोमिना था और उस फिनोमिना का नाम होता है होस्ट कंट्रोल रेस्ट्रिक्शन ऑफ बैक्टीरियोफेज। रेस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम नाम देने से पहले एक फिनोमिना जो बहुत ही वेल नोन था उसको बोलते थे होस्ट कंट्रोल रेस्ट्रिक्शन ऑफ बैक्टीरियोफेज। तो उस फिनोमिना को स्टडी कर रहे थे और उस फिनोमिना को पढ़ते पढ़ते दे फाइंड आउट दैट जो बैक्टीरिया के एंजाइम्स होते हैं वो वायरस के डीएनए में क्या क्या चेंजेस करते हैं। सो व्हाइल स्टडिंग द वेल नोन फिनोमिना host control restriction of bacteriophage, Dr. Arbour and Dr. Stuart Lin, they find out that there is a process, there are certain restriction and modification system which has been occurring in the DNA of bacteria. Is that clear? So what they actually postulated, they postulated that there are two different components here. There are two different components of the defense system, और एक कंपोनेंट होता है बेटा मॉडिफिकेशन और दूसरा कंपोनेंट होता है रेस्ट्रिक्शन। और मॉडिफिकेशन कहां से करेगा? विद द हेल्प ऑफ व्हाट? डीएनए। यस प्लीज नेम इट, मिथाइलेज। और जो रेस्ट्रिक्शन होगा वो कहां से करेगा? बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ये भी डिस्कवरी के बारे में बात चल रही है कि कहाँ से डिस्कवर किए थे। तो अगर हम एग्जैक्टली बात करें तो 1963 में रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का कंसेप्ट हमें पता चल गया था, पर अभी ना ये वो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस नहीं थे जो आप मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में यूज़ कर सके। 5-6 साल के बाद लेटर ऑन एक और साइंटिस्ट का नाम याद रखेंगे, नाम था हैमिल्टन स्मिथ। और हैमिल्टन स्मिथ ने आर्बर की हाइपोथेसिस को वेरीफाई किया था और उन्होंने दो पेपर पब्लिश किए थे डिस्क्राइबिंग द डिस्कवरी ऑफ हिंड 2। अबाउट 5 years लेटर, नेक्स्ट लाइन,
5 year later, Dr. Hamilton Smith verifies आर्बर हाइपोथेसिस, क्या आर्बर साहब तो ठीक कह रहे हैं, एंड पब्लिश टू पेपर्स, ये वाला पार्ट आई एम रबिंग, राइट, एंड पब्लिश्ड 2 papers, research paper for discovery of HIND2. HIND2 क्या होता है? इट्स अ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। इसके बारे में बहुत डिस्कशन होगा भी आगे चल के, मैं बताऊंगा। पहला सबसे पहले डिस्कवर यही हुआ था जो आप मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में यूज़ कर लेते हैं। तो बेटा थोड़ा सा डिस्कवरी समझ में आया कि भाई रेस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम क्या होता है, और स्मिथ साहब ने आर्बर साहब के हाइपोथेसिस को वेरीफाई किया था। इज दैट क्लियर अप टू हियर? लेट मी रब द बोर्ड एंड लेट मी टेल यू द नेक्स्ट थिंग नाउ। तो मैंने ना आपको 3 साइंटिस्ट के नाम बताए थे, अगर याद हो, किसको नोबेल प्राइज मिला था 1978 में रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के लिए। तो आर्बर, नेथन एंड स्मिथ, 3 अलग अलग साइंटिस्ट बताए थे मैंने आपको। डू यू रिमेंबर डैट? सर स्टुअर्ट लिन को क्यों नहीं मिला? एवरीबडी वे देयर पॉलिटिक्स, सो लेट अस नॉट मेंशन अबाउट स्टुअर्ट लिन एनी मोर। जो डॉक्टर नेथन्स थे उन्होंने क्या किया था, उन्होंने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की जो एप्लीकेशंस होती हैं टू जेनेटिक्स, उस पर काम किया था। तो डॉक्टर आर्बर, डॉक्टर स्मिथ एंड थर्ड नेम इज डॉक्टर नेथन। Nathan got all the credit to work use of restriction endonuclease in applications of genetic इंजीनियरिंग में आप कहाँ कहाँ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को यूज़ कर सकते हैं। नेथन साहब ने वो काम बड़े बखूबी किया था कि भाई इससे आप सीक्वेंस ऑफ जीन भी पता कर सकते हैं, इससे आप उनका स्ट्रक्चरल कंपोजिशन पता कर सकते हैं, इससे आप 2 अलग अलग डीएनए बना सकते हैं, जो भी कुछ था विल बी डिस्कसिंग लेटर ऑन। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट, जब हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, एक स्टेटमेंट बनता है दैट इन द ईयर 1978 आर्बर, नेथन एंड स्मिथ गोट नोबेल प्राइज फॉर द डिस्कवरी ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एंड देयर एप्लीकेशन टू द प्रॉब्लम ऑफ मॉलिक्यूलर जेनेटिक। In year 1978, ये स्टेटमेंट पहले भी मेंशन है आपके नोटबुक में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, डॉक्टर आर्बर, डॉक्टर नेथन एंड डॉक्टर स्मिथ गॉट नोबेल प्राइज फॉर डिस्कवरी ऑफ restriction endonuclease and their use in the problems of molecular genetics, and discovery of restriction endonuclease and their use, their application in problems of molecular genetics। ठीक है बच्चों, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि रेस्ट्रिक्शन वर्ड का मतलब क्या होता है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस में जो वर्ड रेस्ट्रिक्शन होता है उसका क्या मतलब होता है, तो आप आंसर करेंगे इट इज द एबिलिटी ऑफ बैक्टीरिया टू रेस्ट्रिक्ट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफेज। द टर्म रेस्ट्रिक्शन रेफर्स टू 2016 और 15 क्वेश्चन है ये। It refers to ability of bacteria, it refers to ability of bacteria to restrict the growth of bacteriophage, to restrict the growth of bacteriophage, इसको बोलते हैं restriction। तो ऐसे एंडोन्यूक्लियस जिनके अंदर एबिलिटी थी कि बैक्टीरियोफेज की ग्रोथ को बैक्टीरिया के अंदर होने से रोक सके, वहाँ से वर्ड आया था रेस्ट्रिक्शन।
और रेस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम में भी आपने पढ़ लिया, रेस्ट्रिक्शन इज टू एबिलिटी टू रेस्ट्रिक्ट द ग्रोथ एंड मॉडिफिकेशन इज टू मॉडिफाई इटसेल्फ। तो आप प्लीज़ याद रखना, आप ना आगे चल के जब थोड़ा सा और आगे पढ़ोगे तो आप ये समझ में आता है कि यार रेस्ट्रिक्शन जो है दे आर रेस्ट्रिक्टेड टू एक्ट एट ए पर्टिकुलर साइट, फाइन, बट रेस्ट्रिक्शन का मतलब वो कभी नहीं होता है कि वो स्पेसिफिक साइट पे एक्ट करते हैं। रेस्ट्रिक्शन का मतलब होता है ये लाइन, एबिलिटी ऑफ बैक्टीरिया टू रेस्ट्रिक्ट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफेज, और प्लीज़ आप यही याद रखेंगे। तो इतना सब पढ़ने के बाद, इतनी डिस्कवरी के बारे में पढ़ने के बाद, अगर मैं आपसे डेफिनेशन ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की बात करूँ तो एक अच्छी सी क्लासेस डेफिनेशन देंगे आप मुझे? लेट मी रब सम पार्ट फ्रॉम हियर एंड लेट अस डिफाइन रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस नाउ। लेट अस राइट अ डेफिनेशन फॉर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हियर। आप भी अपनी डेफिनेशन को डिज़ाइन कर सकते हैं जो अब तक आपने सीखा है उसके बिहाफ पर व्हाट यू वुड लव टू से। Restriction endonuclease, they serve as chemical knives. Restriction endonuclease serve as chemical knives to cut gene or DNA into defined segment. What are restriction endonuclease? Restriction endonuclease serves as chemical knives to cut DNA और जीन इनटू सेवरल डिफाइंड सेगमेंट। देखो डिफाइंड वर्ड क्यों यूज़ कर रहा हूँ इसके बारे में भी बात होगी आगे, राइट। ऐसा नहीं कोई भी आपके पास DNA का सेगमेंट था, लेट्स से दिस इज DNA सेगमेंट, और यहाँ पर ना मैं जीन ऑफ इंटरेस्ट है और मैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से उसको यहाँ से काट दिया, यहाँ से काट दिया, यहाँ से काट दिया, यहाँ से काट दिया, ये सब टुकड़े कर दिए। ना, आई विल बी ट्राइंग टू कट इट फ्रॉम हेयर और हेयर, ताकि मुझे ये वाला सेगमेंट, डिफाइंड सेगमेंट मिले। आगे जैसे चल के आप और ज़्यादा इसी चैप्टर में सीखते जाओगे, वैसे वैसे और आप जो है स्पेशलाइज होते चले जाएंगे। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस सर्व्स एज केमिकल नाइव्स और केमिकल स्कैपल, मॉलिक्यूलर सीजर विच कट DNA और जीन इनटू सेवरल डिफाइंड सेगमेंट्स। इज दैट क्लियर? फिर सवाल पूछा जा सकता है, इफ आई आस्क यू नाउ, अगर आपने डिस्कवरी वगैरह से कुछ सीखा हो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की, व्हाट दे मे बी यूज्ड फॉर? दे मे बी यूज फॉर, मुझे ऐसा लग रहा है मैंने ना बोलते बोलते इनके यूज़ एक बार आपको बता दिए थे भी, बट लेट मी चेक कितना कंसंट्रेशन है क्लास में भी, कहाँ यूज़ हो सकते हैं। इफ़ आई से दे कैन यूज़ टू डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ जीन ऑन ए क्रोमोजोम, किसी भी क्रोमोजोम पे जीन का क्या ऑर्डर है वो डिटरमाइन करने के लिए आप रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यूज़ करेंगे। RFLP आगे चल के कोई आप ना टेक्निक पढ़ोगे, रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, उसमें आप यू कैन डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ जीन। तो पहला मैं लिख देता हूँ, दे आर यूज टू डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ जीन ऑन ए क्रोमोजोम, द पहला जो भी है। उसके बाद जो भी जीन है आपका उसका केमिकल स्ट्रक्चर कैसा है ये भी आप पता कर सकते हैं। either it is having 100G, 100T, 100C, whatsoever, your gene of interest, how it reads, और उसको रीड करने के लिए आपको उसको कट करना पड़ेगा, अदरवाइज आप पूरा ह्यूमन जीनोम जो बिलियंस ऑफ बेस पेयर जिसमें होते हैं उसको पढ़ रहे होंगे। सो आप लिखेंगे टू एनालाइज द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ जीन्स एंड रीजन ऑफ DNA विच रेगुलेट द फंक्शन ऑफ जीन। ये कैसे पता चलता है आपको? बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। To analyze the chemical structure of gene, and to regulate or to identify regulators of जीन फंक्शनिंग, कैसे काम कर सकते हैं आप, ये कैसे किया जाएगा? इट वुड बी डन बाय यूजिंग रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, यू कैन मेक रिकॉम्बिनेंट DNA बाय यूजिंग रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो बच्चे अभी हमने पढ़ा है व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। आई गेस हिस्ट्री से जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आप आराम से बता देंगे। अब हम बात करते हैं उस पर्टिकुलर एरिया की
जिस पर्टिकुलर एरिया पर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एक्ट करता है। रिकॉग्निशन साइट क्या होती है? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, सर आपने तो GA बताया, देखो GA इज द पर्टिकुलर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड जिसके ऊपर वो एक्ट कर रहा है, पर पूरे के पूरे DNA सीक्वेंस में वो किस लेंथ और किस पर्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ DNA को इंस्पेक्ट करके कट करता है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। देखो अभी तक आपने क्या सीखा, आपके पास फॉर एग्जांपल ये ना 1 लाख ऑफ बेस पेयर वाला DNA सीक्वेंस है, और अगर टर्मिनल एंड पे नहीं कट करता है, विद इन द सीक्वेंस कट कर रहा है तो एंडोन्यूक्लियस है। अब एंडोन्यूक्लियस यहाँ भी कट कर सकता है, कहीं भी कट कर सकता है, टर्मिनल एंड के अलावा वो कहीं भी कट कर सकता है, पर एक ऐसा एंडोन्यूक्लियस जो पर्टिकुलर सीक्वेंस पे ही कट करेगा, उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, राइट। अब ये पहले पूरे इंस्पेक्ट करेगा लेंथ ऑफ DNA, और फिर उसको जब ये वाला साइट मिलेगा तो वो इस पर कट करेगा, इस साइट को बोलते हैं रिकॉग्निशन साइट। तो रिकॉग्निशन साइट का डेफिनेशन लिखेंगे अभी, और रिकॉग्निशन साइट के बारे में कुछ पॉइंट्स भी पढ़ेंगे। लेट अस टॉक अबाउट रिकॉग्निशन साइट फॉर द मीन टाइम। अब रिकॉग्निशन साइट क्या होते हैं? देखो, रिकॉग्निशन साइट को आप रेस्ट्रिक्शन साइट भी कहते हैं, रिकॉग्निशन साइट को रेस्ट्रिक्शन साइट भी कहते हैं, क्योंकि यहीं पे जाके डाइजेशन करना है उसको, यहीं पर जाके उसको फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को डाइजेस्ट करना है। तो रिकॉग्निशन साइट के डेफिनेशन पढ़ेंगे। रिकॉग्निशन साइट, it is located on a molecule of DNA and may range from 4 to 8 nucleotide in length, which are recognized by restriction enzyme. So what is recognition site? This is located, let me use blue marker, located over DNA sequence. Now next line very important, about 4 to 8 nucleotide, or let's call that base pair in length. बेस पेयर ही यूज़ करते हैं क्योंकि अनपेयर्ड तो नहीं होती न्यूक्लियोटाइड्स हो, लेट्स कॉल दैट BP. BP स्टैंड फॉर बेस पेयर, आई रिपीट BP स्टैंड फॉर बेस पेयर. सो restriction site are located over DNA sequence, 4 to 8 nucleotide in length, and is recognized by restriction enzyme for their action. For their action. You better know कि enzymes ना एक substrate के ऊपर काम करते हैं, तो इन एंजाइम का एग्जैक्ट सबस्ट्रेट क्या होता है वो रिकॉग्निशन साइट है, कि भाई ये जो है ये 4 to 8 बेस पेयर इन लॉन्ग है, आगे इसकी फीचर बताऊंगा। तो ये लोकेटेड होती है ओवर DNA सीक्वेंस 4 to 8 बेस पेयर इन लॉन्ग, एंड दैट हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय दिस एंजाइम, एंड दिस एंजाइम इज रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। इसको कहाँ पे कट करना है? आंसर इज हियर. तो those particular site at which restriction enzyme act is referred as to recognition site. As simple as it is. Recognition site is always palindromic. Recognition site 4 to 8 base pair in length होती है. This thing is very important. They are palindromic in nature. Palindromic का मतलब क्या होता है? They are palindromic in nature. क्लास 11th में बायोमोलिक्यूल में मैंने मेंशन किया था, ऐसा कोई भी सीक्वेंस ऑफ डीएनए जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम और 3 प्राइम टू 5 प्राइम सेम रीड करे, जो दोनों स्ट्रैंड पर सीक्वेंस ऑफ डीएनए सेम रीड करे, उसको बोलते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस. A sequence of base pair that read the same on the two strand when orientation is kept same. What I am telling you, पहले डेफिनेशन लिख दूँ. Sequence of DNA which reads the same on both strand when the orientation is kept same. देखो, जब हम पैलिंड्रोमिक को समझने की कोशिश करते हैं तो हम ना कुछ वर्ड यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल हम पहले वर्ड यूज़ करते हैं जो आपके छोड़ो, इफ़ यू स्टडी मैडम लाइक दिस और यू स्टडी मैडम लाइक दिस, इट रीड द सेम. और आपके सर यू रीड इट लाइक दिस और यू रीड इट लाइक दिस, इट रीड द सेम. और मलयालम
यू रीड इट लाइक दिस और रीड इट लाइक दिस, इट रीड द सेम। तो जो दोनों स्ट्रैंड पर एक जैसे रीड करेंगी उसको बोलते हैं पैलिंड्रोमिक इन नेचर। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे एक पैलिंड्रोमिक साइट की बात करूं, मैंने आपको एक एंजाइम पढ़ाऊंगा आगे, इको R1, और उसका रिकॉग्निशन साइट होता है GAATTC। इको R1 का रेस्ट्रिक्शन साइट होता है इको R1, इसमें इको का मतलब भी बताऊंगा, R का और 1 का मतलब भी बताऊंगा। इसका रेस्ट्रिक्शन साइट होता है GAATTC। यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग करना है C के साथ GAATTC। आप इसको ऐसे रीड करेंगे GAATTC, रीड इट लाइक दिस GAATTC। तो जो डीएनए के जब आप दोनों स्ट्रैंड को रीड करते हैं, अगर वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड ऑन द अदर स्ट्रैंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम सेम रीड कर रहा है, उसको बोलते हैं पैलिंड्रोमिक। आई गेस पैलिंड्रोमिक का मतलब समझ में आ गया होगा, सीक्वेंस ऑफ डीएनए व्हिच रीड द सेम ऑन द बोथ स्ट्रैंड व्हेन द ओरिएंटेशन इज केप्ट सेम। फॉर एग्जांपल, रेस्ट्रिक्शन साइट फॉर इको R1 इज GAATTC। ये आपसे आगे पूछा जाएगा, मैं ही पूछूंगा और कौन पूछेगा। ठीक है बेटा, ये हो गया आपका कंसेप्ट ऑफ रिकॉग्निशन साइट के बारे में। अब हम पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। अब हम पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंड दैट आई विल बी स्टार्टिंग इन द नेक्स्ट लेक्चर। अभी हमें पढ़ना है फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के बारे में, फिर आपको मैं बताऊंगा टाइप्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, फिर आपसे मैं बात करूंगा हाउ द नोमेनक्लेचर ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इज डन, हाउ दे वर्क एंड ऑल द थिंग्स, व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रैंड कैन बी फॉर्म्ड बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। सो आज के लेक्चर में बच्चों अभी यहीं पे रुक जाते हैं, और इसके बाद टुमारो विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस विच वाज डिस्कवर्ड, और उसका नाम भी बताएंगे HIND2। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप द कंसेप्ट्स आर क्लियर, द लर्निंग्स आर क्लियर। थैंक यू सो मच। क्लास इज डिसमिस्ड।